Anupam Kher, a versatile personality whose mark on the world of cinema and beyond resonates with audience across the globe. With a career spanning over 3.5 decades, he has graced over 500 films, portraying iconic characters that have left an indelible imprint on the hearts of audiences. His cinematic journey has not been confined to the boundaries of Bollywood. Anupam Kher has collaborated with acclaimed international directors. Films like Silver Linings Playbook and Hotel Mumbai stand testament to his ability to seamlessly navigate diverse genres and captivate audiences worldwide. Beyond the glitz and glamour of the silver screen, Mr. Kher has been a stalwart in the world of arts and education. As the former chairman of institutions such as the Film and Television Institute of India, the National School of Drama, and his very own acting school, Actor Prepares, he has been a guiding force in nurturing the next generation of talents. Anupam Kher's autobiographical works, Lessons Life Taught Me Unknowingly, and Autobiography, and The Best Thing About You Is You, have received widespread acclaim and provide a deeper insight into the man behind the actor. He has been recognized with the Dalai Lama Award for his philanthropic work with underprivileged children through the Anupam Kher Foundation. In 2004, Mr. Anupam Kher was bestowed the Padma Shri Award, followed by the Padma Bhushan in 2016, his distinguished service of higher order in art. Anupam Kher is more than a cinematic icon. He is a storyteller of life, a mentor, and a source of inspiration for all who have the privilege of witnessing his magic unfold. Ladies and gentlemen, it is with great pleasure that we present to you the maestro himself, Mr. Anupam Kher. वेलकम अनुपम जी टू आशाएं. I request past District Governor Shabbir Shakir to take on the stage. Welcome, sir. And continue with this session. नमस्कार दोस्तों. A very very good afternoon to all of you. Mr. Anupam Kher, the man himself. इनकी तारीफ में क्या कहा जा सकता है. दो पंक्तियों में कहने की कोशिश करूंगा कि रंग, हुस्न, गहने और जलवे सब थे इस महफिल में.
रंग हुस्न गहने और जलवे सब थे इस महफिल में, एक शख्स अपनी सादगी में सब पर भारी था, सब पर भारी था। वेलकम टू रोटरी सर, एंड एट द आउटसेट और मुझे वो गहने भी दे दीजिए। आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर। आई एम very there were only few organizations which have been there for a long time, and Rotary is one of them. फिर धीरे धीरे और सारी organizations आए, but I think it's the oldest, the first, one of the first organizations that I heard about when I was small, younger, was Rotary. So I'm very happy and to see so many good-looking, warm, charismatic faces sitting even till the last line, which is very good. And I also feel that when I was in my school, the judges in my school competition of speech competition, the judges used to sit on the other side. तो मुझे उनसे सबसे डर लग रहा है, वो जो वहाँ बैठे हुए पेपर चेक कर रहे हैं. So it's good to be here. I've come to Nasik after 26 years. I came here when I was shooting for a film. Oh. And after that it took me such a long time, but I'm finally happy to be here for a Rotary function. Thank you. थैंक यू सर. शुरुआत में बता दूं, गहना अगर आपको देना है तो क्या दें, गहना ही आप हैं हमारे लिए आज. तो शुरुआत से करते हैं कि सर आपका जन्म एक ऐसी फैमिली में हुआ है जहां आपके पिता गवर्नमेंट सर्विस में थे. आपने अपनी पढ़ाई इकोनॉमिक्स में की, तो ये एक्टिंग और उसका शौक कहाँ शुरू हुआ, और हाँ जब आपने उसको आगे लिया तो आपको अपनी फैमिली से, इंटरनली लोगों से अपोजिशन था या उन्होंने सपोर्ट किया? पहले बात तो मुझे 40 साल हो गए काम करते हुए. 40 साल में मैंने 540 फिल्में कर ली हैं. God has been kind to me, and so मेरी audience is also very kind to me. तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जीवन के बारे में सब कुछ सबको पता है. मेरे को ऐसी फीलिंग आती है कि मैंने इतनी बार अपने जीवन के बारे में बात की है, बट गवर्नमेंट सर्विस से कभी कभी आप लगता है कि गवर्नमेंट सर्विस में कोई बहुत बड़े अफसर थे मेरे फादर. माय फादर वाज अ क्लर्क इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जस्ट अ स्मॉल जूनियर डिवीजन क्लर्क, and he used to earn 90 rupees per month, which is $1.10 in today's time. In fact, $1. और हमारे परिवार में 14 लोग थे जो इतने छोटे से कमरे में रहते थे शिमला में, और इस कमरे के साथ ही एक वरांडा था. और मैं पढ़ाई में बहुत बिल्कुल अच्छा नहीं था. इकोनॉमिक्स वर्ड्स, जस्ट बिकॉज इकोनॉमिक वर्ड्स कम देयर वाज, आई हैव नो आइडिया व्हाट इकोनॉमिक्स वाज. No idea. I never got more than 38% marks in my entire academic career. Okay, let me play a small game with all of you. How many of you got more than 50% marks here? My God, almost 100%. How many of you got more than 60%? My God, 90%. How many got more than 70%? Still you are sitting in the audience and I am sitting on the stage. तो कुछ तो अच्छा किया है मैंने. पढ़ाई में अच्छा नहीं था मैं खेल कूद में भी नहीं अच्छा था. I was not good at sports also. In fact, when I was in school, one day my PT teacher saw me running and he said, "Stop it. Even if you run alone, you will come second." I have not been able to discover till today. But I was in small towns. When I was here in Nasik 26 years back, it was a small town. Now it's become a huge city, which is very good. Development is always fantastic. But Simla was a small town at that time, early 60s. So in that small house, हम 14 लोग रहते थे. 14 people. My grandparents, मेरे ताया जी, चाचा जी, उनके बच्चे. We were all 14 people, and the only source of income was my father. So we were garib, poor. Now there are different words for it. Commercially,
economically dependent, lower middle class, upper middle class, upper middle class. At that time it was either you are poor or you are rich. There was no middle class. But we were very happy. All 14 of us, I remembered we were happy. There was nothing much to eat, there was nothing much to special to wear. So I one day asked my grandfather कि दादाजी हम इतने गरीब हैं तो हम इतने खुश क्यों हैं? उन्होंने एक बड़ा कमाल का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि बेटा जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है. अरे वाह. तो मेरे मन से गरीब होने की हीन भावना चली गई. हीन भावना होती ना गरीब, अब मैं गरीब हूं, कोई अमीर है, कोई ज्यादा पैसा है किसी के पास, तो ये डर ही निकल गया कि हम गरीब हैं, क्योंकि दादाजी ने बोल दिया कि when you are very poor the cheapest luxury available is happiness. So I thought we are happy. The other thing that we are all scared of is failure. At a very young age, at the age of 14, my father took away the fear of failure from my life. आपके भी साथ होता होगा कि आपको स्कूल के रिपोर्ट कार्ड अपने पेरेंट्स से साइन करवाने होते हैं, होता है ना? You have to get it done, signed by your parents, so that teachers know that your parents know how are you doing in the school. तो मैं बहुत बुरा था पढ़ाई में, तो मैं वेट करता था कि पिताजी कब जल्दी में हों और जल्दी में उनको अपना रिपोर्ट कार्ड दे दूं और जल्दी में साइन करके चले जाएं. तो 9th स्टैंडर्ड में मैंने उनको एक बारी अपना रिपोर्ट कार्ड दिया साइन करने के लिए, तो सडनली उनको लगा कि उनको कुछ रह गया है, तो उन्होंने इस बार फर्स्ट टाइम मेरी रिपोर्ट कार्ड पढ़ी और रिपोर्ट कार्ड देख के बोले कि तू 59th आया अपनी क्लास में? मैंने कहा हाँ जी. तो बोले स्टूडेंट कितने हैं? मैंने कहा 60. अब मुझे लगा कि मुझे डांट पड़ेगी, मेरे पिताजी मुझे गुस्सा होंगे, बुरा कहेंगे, क्या करता है तू. बट ही टुक ए लॉन्ग पॉज एंड फिर बोले कि बेटा एक बात तो है, जो फर्स्ट आता है उसको हमेशा इस बात की टेंशन रहती है कि मुझे फर्स्ट आना है. वो सेकंड भी आता है तो उसको लगता है उसका डिमोशन हो गया. लेकिन जो 59th आता है वो 48th आ सकता है, 37th आ सकता है, 18th आ सकता है. तो एक काम करना, नेक्स्ट टाइम 49th आना. एंड देन ही एडेड वन लाइन which changed the philosophy of my life for the rest of my life. He said, remember one thing, that failure is an event, never a person. Event fails. इंसान कभी फेल नहीं होता है. जब एक 14 साल के बच्चे से गरीब होने का डर निकल जाए, फेलियर का डर लग जाए, तो फिर वो दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान महसूस करता है. So that is what I felt when I was a child. Okay. And did your parents, did your family support you in your choice? Oh, my father was my biggest fan. My father had no time to discover whether I'm studying, not studying. Poor fellow was to feed 14 people in my family. He used to be happy. He used to be thrilled about life. He was a very simple man. He used to walk 14 kilometers one way to his office. I used to walk 9 kilometers per side to my school. He used to leave at 8 o'clock in the morning, come back at 8 o'clock in the night. He did not have any, he was not an interfering father कि पढ़ता कैसा हो, बताओ कैसे हो. My mother used to sort of try and discipline us. So my father was my biggest fan from the first play that he saw of mine in 5th standard till the last film that he saw of mine before he passed away. He was the most supportive father in the world. In fact, आप लोग कहते हैं ना कि people are born actors. ये सब बकवास. Born actor होता तो मेरा पहला प्ले कमाल का होता. मैं आपको अपने पहले प्ले की कहानी सुनाता हूँ. मैं 5th स्टैंडर्ड में था, 5th ग्रेड में. तो हमारी क्लास टीचर थी एक मिसेस बजाज. उन्होंने एक प्ले चुना, जैसे स्कूल फंक्शन में, जैसे आज यहाँ फंक्शन है, तो स्कूल फंक्शन में एक प्ले डिसाइड हुआ, पृथ्वीराज चौहान. पृथ्वीराज चौहान जी का नाम सुना आपने सबने? और चूंकि मैं क्लास में सबसे गोरा लड़का था, मेन रोल मुझे मिला. पृथ्वीराज चौहान जी, उनको कहा कि गोरा है, बट आई वॉज वेरी थिन. आई वॉज सो थिन दैट आई कुड सी थ्रू ए की होल विद बोथ माई आईज. मैं इनफैक्ट जब तेज हवा चलती थी तो मेरी माँ मेरे बस्ते में ज्यादा किताबें डाल देती थी, ये सोच के कहीं कि हवा के साथ ही अंदर ना हो जाए. तो मिसिज बजाज ने प्ले चुना करने के लिए. प्ले का नाम था पृथ्वीराज चौहान, और चूंकि मैं सबसे गोरा लड़का था, मेन रोल मुझे मिला.
तो मैं बन गया पृथ्वीराज चौहान और एक दूध वाले का बेटा नंद किशोर यानी नंदू बन गया जयचंद। अब प्ले में पृथ्वीराज की कहानी ऐसी थी कि पृथ्वीराज चौहान को जयचंद की बहन संयुक्ता से प्यार हो जाता है और प्ले में मुझे एंड में जयचंद को गिराना होता है। आई वाज इन 5th ग्रेड। मेरे फादर मदर 8th रो में बैठे थे। मेरे फादर के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशन था जब नाटक शुरू हुआ कि मेरा बेटा आज कमाल करने वाला है, क्योंकि मैं घर में बता चुका था कि एंड में मैं जीत जाता हूं। तो वो बड़े खुश थे कि हमारा बेटा एंड में जीत जाएगा, पतला है मगर जीत जाएगा। तो मुझे तलवार उठा के एक डायलॉग बोलना था। तो नंद की जब पर्दा उठा तो जैसे यहाँ 2 साइड्स हैं, एक साइड पे नंद किशोर की फैमिली बैठी थी, दूध वाले। नंद किशोर दूध वाले का बेटा था, मोटे हट्टे कट्टे मूछों वाले, बड़े बड़े बनैन पहने हुए, तगड़े। और एक तरफ खेर खानदान के चमकते सितारे बैठे थे, पतले टीचर्स, गवर्नमेंट सर्वेंट्स। पर मेरे पिताजी खुश थे कि वाह मेरा बेटा आज कमाल करेगा। तो नाटक शुरू हो गया। तो मैंने पहली बार बोला, चला जा ना बकवास कर तू नंदू गिर, तो नंदू गिर गया। उसको 3 बार गिरना था। दूसरी बार बोला मैंने, चला जा ना बकवास कर तू नंदू गिर, नंदू फिर गिर गया। जब मैंने तीसरी बार बोला चला जा, सडनली ऑडियंस में से नंद किशोर का बाप खड़ा हो गया और बोला, नंदू अब के गिरा तो घर ना आइयो। उसके बाद इतिहास पलटा, नंदू पलटा और जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान को उठा के ऑडियंस में फेंक दिया। और फिर अपने बाप को बोला, बापू अब घर आऊं। तो मेरे पिताजी मेरे को गोद में लेकर देख रहे थे, पर मुझे लगा कि मैंने एक्टिंग अच्छी की तो बेस्ट एक्टर का अवार्ड तो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। शाम को अनाउंस हो गया, बेस्ट एक्टर वेंट टू समबडी एल्स, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर वेंट टू समबडी एल्स, consolation prize went to Nand Kishore. I did not get anything. So मैं रात को अपने घर में बैठा था और जब जॉइंट फैमिली में कोई लड़का या लड़की थोड़ी फेल वेल होते हैं तो बाकी लोग उससे नजरें नहीं मिलाते हैं कि ये बेइज्जती महसूस कर रहा है, इसको अलग रहने दो। तो मैं भी चुपचाप बैठा था। तो मेरे पिताजी, हमारे घर के बाहर एक छोटा सा पहाड़ था, उसके ऊपर जंगली फूल, पीले रंग के जंगली फूल लगते थे, मुझे अभी भी याद है। उन पीले रंग के जंगली फूलों का गुच्छा बनाकर, एक गुलदस्ता बनाकर मेरे पास आए और बोले, बेटा ये तेरे लिए, हारने के लिए नहीं, ट्राई करने के लिए, यू आर ए विनर। सो इन ए स्ट्रेंज वे माई फादर वॉज माई बिगेस्ट एसेट, माई ग्रैंडफादर, फादर। सो हम लोग बड़े अपने बच्चों को डरा के रखते हैं, खासकर आजकल के माँ बाप। माई फादर सेलिब्रेटेड माई फेलियर, ही सेलिब्रेटेड माई फेलियर एज ए 9th standard स्टूडेंट, ही सेलिब्रेटेड माई फेलियर एज माई फर्स्ट प्ले। मेरे फादर और मदर को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मैं इकोनॉमिक्स में हूँ या पॉलिटिकल साइंस में हूँ। मेरे फादर के जो हेड क्लर्क ऑफिस थे, मतलब जो उनके सुपरिटेंडेंट थे, बनोट साहब का बेटा जी मेरी क्लास में पढ़ता था। और जब भी मैं फादर को मिलने उनके ऑफिस में जाता था, बनोट साहब वाज ए सैडिस्ट, तो मेरे फादर को छोटा महसूस कराने के लिए मुझसे वो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछते थे और मेरे को तो कोई सवालों के जवाब आते नहीं थे। तो फिर वो कहते थे कि देखिए पुष्कर नाथ जी, मेरे फादर का नाम, मेरा बेटा देखो फर्स्ट आता है अपनी क्लास में। जब मैं एक्टर बन गया बहुत सालों बाद, तो मैं बनोट साहब के घर गया अपने पिताजी के साथ। तो मैंने कहा, आपका बेटा क्या करता है बनोट साहब? मैं देखूं पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हूं इसका मतलब। तो मेरे फादर ने मेरे को आंख मार के बोला, ये बनोट साहब हैं, ऐसे मत बोल। मैंने कहा, आप पुष्कर नाथ हो, अब मेरे फादर हो, ऐसी क्या बात है? सो देयर वाज नो इंटरफेरेंस फ्रॉम माय फैमिली। In fact, they were proud in whatever I was doing. Friends, I think this is the time for a big round of applause to the hero behind this hero. आपके पिताजी लेट पुष्कर नाथ खेर, I think he deserves a big round of applause. My father was my hero, eternal hero.
It's so strange that every time I give a motivational lecture or speak to people, I always talk about my father, because you have to have a reference point in your family. Because your family is your first teacher. Your parents are your first teacher. How you bring up your children, that is the most important thing, yes. To such fathers, अनुपम सर, ऐसा लिखा गया है कि आपके स्ट्रगलिंग दिनों में आप जब मुंबई आए थे तब रेलवे प्लेटफॉर्म पे आपने 100 दिन सोए. नहीं, 39 days. 39 वो days. धीरे धीरे कहानी बढ़ती चली जाती है, फिर वो 100 दिन हो जाते हैं, but no, 27 days to be precise. But 27 days, 24 hours in a day, and it's quite a bit. When you're an educated person, when you're a gold medalist. So I might not have done well in my school or college, but I did very well at my acting training. I was a gold medalist finally in my acting school. But Mumbai में जब मैं गया on the 3rd of June 1981, आज से 42 साल पहले लगभग, तो ये तो बड़ा dignified, bald, sexy look है, ऐसे अच्छा सा सूट वूट पहन के बैठ. पर आपके जब शुरू में भाई साहब, बिल्कुल सही है आपकी बात, सही जा रहे हैं आप. ये जानबूझ के इन्होंने फ्रंट रो में 2 मेरे हेयर स्टाइल के बंदे बिठाए हैं, एक आप हो और एक अंग्रेज है, एक फॉरेन टच भी दिया है. आई एम वेरी हैप्पी टू हैव अ बॉल्ड मैन सिटिंग इन द फ्रंट रो सर. थैंक यू वेरी मच. एंड यू मे नॉट हैव अंडरस्टूड एनीथिंग एल्स दैट आई सेड, बट यू अंडरस्टूड दिस. But I want to tell you there are only 2 kinds of men, baldies and future baldies. That's all. So जब मैं पहुंचा बॉम्बे, I am not very good at English, so that's why I'm speaking in Hindi. That's what, I went to a Hindi medium school. तो जब मैं बॉम्बे पहुंचा तो आधे बाल यहाँ से जा रहे थे, आधे यहाँ से जा रहे थे, ऊपर से पतला था. तो सब लोग मुझे कहते थे आप ऐसा करिए, आप राइटर बन जाइए, आप असिस्टेंट बन जाइए, मगर एक्टर तो नहीं बन सकते आप. तो मुझे लगता था मैं तो ड्रामा स्कूल से गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं एक्टर क्यों नहीं बन सकता, मेरे को तो एक्टिंग आती है. तो मैंने भी फिर मेहनत करके अपना कोशिश की और मैं बना, मगर उसमें बहुत तकलीफ़ें थी. जितने मेरे पास थोड़े बहुत इकट्ठे हो गए थे पैसे, वो ख़त्म हो गए. और फिर वक्त आया कि ऑल माई फ्रेंड्स ऑल्सो हैड एग्जॉस्टेड माई स्टे इन देयर हाउस. आप कितने दिन जा सकते हैं दोस्तों के पास, मेरे किसी के यहाँ 5 दिन रहा, किसी के 10 दिन. फिर सब में मुंबई में सब कह देते हैं कि भैया हो गया जितना हमने करना था, अब तू अपना. तो आई हैड नो प्लेस बट टू स्टे ऑन अ बैंड्रा ईस्ट railway platform for 27 days. So I used to sleep at about 1:40 because the last local train used to go at 1:40, and I used to get up at about 4:40 because the first local train used to start. So I used to sleep for those 3 hours. And I was feeling very humiliated because as it is, humiliation of human being is very, very sad. But if you are educated, you feel more humiliated. So I wrote a letter to my grandfather. मैंने उनको चिट्ठी लिखी कि मैंने कहा दादाजी मैं ये शहर छोड़ के जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ कुछ नहीं हो रहा. मैं 1.5-2 साल से यहाँ पर हूँ, मुझे काम नहीं मिल रहा है, और मेरी हालत देखिए, मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सो रहा हूँ, जहाँ पर पुलिस वाला आके डंडा लेके बोलता है कि चलो भागो यहाँ से. मैं अपना बैग नीचे जो बेंच के नीचे रखा होता है, मैं पढ़ा लिखा एक्टर हूँ, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैं वर्ल्ड लिटरेचर को जानता हूँ, वर्ल्ड थिएटर को जानता हूँ, ये क्या है, मैं वापस जाना चाहता हूँ शिमला. तो उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी. उन दिनों चिट्ठी लिखते थे, तो चिट्ठी मेरी किरण तब मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, उनके एड्रेस पे चिट्ठी लिखी. और उन्होंने बोला कि वो चिट्ठी में एक लाइन थी जिस लाइन ने अगेन मेरी ज़िंदगी चेंज कर दी. चिट्ठी लिखी उन्होंने कहा बेटा तू, तेरे माँ बाप ने बहुत मेहनत की है, तेरे को अपना जेब काट के पैसा पढ़ाया है, तेरे फादर ने घड़ी बेची है, तेरे मदर ने अपने कंगन बेचे हैं तेरे को पढ़ाने के लिए, और तू 1.5-2 साल से यहाँ पर रह रहा है, तू वापस मत जा. और याद रख, भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता. तो जिंदगी की सारी शिक्षाएं घरों में ही होती हैं, हम ले नहीं पाते हैं. जब मैंने पढ़ा कि भीगा हुआ आदमी बारिश से नहीं डरता, मैंने कहा बात तो सही है. मैं फिर शुरू हो गया, और उसके 1.5 साल बाद मुझे पहली फिल्म मेरी मिली सारांश. और सारांश में भी 1 जनवरी 1984 को फिल्म शुरू होने वाली थी,
और मैंने 6 महीने तक सारांश के बीवी प्रधान का रोल का रिहर्सल किया था, 6 महीने। आई वॉज 27 एंड आई वॉज प्लेइंग ए 65-year-old मैन। तो मैं रोज धोती कुर्ता पहनकर शिवाजी पार्क में जाता था। शिवाजी पार्क की कहानी थी, उन बच्चों को हंसता खेलता उछलता देखता था, वो सोटी लेकर, मुझे स्टिक लेकर मैं घूमता रहता था। और 20 दिसंबर को मेरा एक दोस्त मेरे घर पे आया, घर मतलब क्या, वो जो मेरी पेइंग गेस्ट एकोमोडेशन थी, उसने मुझे बोला, सुहास खांडके उसका नाम है, मेरा क्लास फेलो था। उसने कहा यार मैं कल राजश्री प्रोडक्शन के ऑफिस में गया था और मैंने वहाँ एक अफवाह सुनी है कि सारांश के बीवी प्रधान का रोल तू नहीं कर रहा है। मैंने क्या बात कर रहा है, मैं तो 6 महीने से रिहर्सल कर रहा हूँ, अभी सुबह ही मैं भट्ट साहब के पास था, मेरे तो कॉस्ट्यूम और बाकी चीज़ें डिसाइड हो रहा है, मेरा मेकअप डिसाइड हो रहा है। कहता नहीं, मैंने अफवाह सुनी है, आई थिंक दे हैव टेकन संजीव कुमार फॉर दैट रोल। I couldn't believe it because for 6 months I was rehearsing. मैंने भट्ट साहब को फ़ोन किया, वो राशन की दुकान से। I called him up and I said, भट्ट साहब ये मैं क्या अफवाह सुन रहा हूँ, मैं तो मजाक समझ रहा था कि मैंने सुना कि सारांश के बीवी प्रधान का रोल मैं नहीं कर रहा हूँ, संजीव कुमार कर रहा है। तो भट्ट साहब बोले हाँ बेटा, वो क्या है कि Rajshri people don't want to spend money on a newcomer, so they have taken Sanjeev Kumar for the role, main role. You do the other old man's role. Okay, there is another old man's role. Okay, bye. और उन्होंने फोन नीचे रख दिया। ये 20 दिसंबर 1983 की बात है। मैंने कहा ये कैसे है? मैंने सोचा कि अब ये शहर मेरे लायक नहीं है। This city does not deserve me. मैं यहाँ से वापस जाता हूँ। मैंने बहुत धक्के खाए हैं और ये मेरी एक आखिरी उम्मीद थी जिस पे मैंने 6 महीने से मेहनत की है। तो मैंने अपना सारा सामान पैक किया और मैं वीटी स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। फिर मुझे जाते समय अपने दादाजी की बात याद आई। दादाजी कहते थे कि अगर आप किसी के भी बराबर का होना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू बी इक्वल टू एनीबडी इन द वर्ल्ड, उससे कुछ एक्सपेक्ट मत करो। तो मैं समझ गया कि अब मुझे भट्ट साहब से कुछ चाहिए नहीं, अब मैं उनके बराबर का हूं। नाउ आई शुड गो टू हिज हाउस एंड टेल हिम व्हाट आई थिंक ऑफ हिम। तो मैं उनके घर गया। वो 6th फ्लोर पे रहते थे, लिफ्ट काम नहीं कर रही थी। मैं लिफ्ट में चढ़ा। जब आदमी को गुस्सा आता है तो एक अजीब सी एनर्जी मिलती है, जोश आता है, और खासकर अगर राइटियस गुस्सा हो, सही गुस्सा हो, इंसाफ का गुस्सा हो। तो मैं उनका दरवाज़ा खटखटाया, भट्ट साहब ने दरवाज़ा खोला और बोले फैंटास्टिक, यू आर टेकिंग इट सपोर्टिंगली, यू सी राजश्री पीपल आर बिग प्रोडक्शन हाउस, दे डोंट वांट टू स्पेंड मनी ऑन ए न्यू कमर। तो मैंने कहा भट्ट साहब इधर आइए। मैंने कहा ये नीचे जो टैक्सी है उसमें मेरा सामान है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए जा रहा हूँ। लेकिन जाने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप 1 नंबर के फ्रॉड हैं, आप 1 नंबर के चीट हैं। मैंने कहा आप सच पे फिल्म बना रहे हो, आपके अंदर सच है ही नहीं, आप कैसे कर सकते हो? मैं 6 महीने से इस रोल की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आप मुझे कहते हो कि मैं दूसरा छोटा रोल कर रहा हूँ। मैं रो भी रहा था, आई वाज क्राइंग, आई वाज इन अ डेस्परेट सिचुएशन बिकॉज इट वाज माय लास्ट चांस। और भट्ट साहब आप बहुत बड़े फ्रॉड हैं, मैं बोल रहा था। अब जब गुस्सा आता है तो आप सोचते हो कि लास्ट की कोई ऐसी लाइन होनी चाहिए जो बड़ी क्लाइमैक्स की लाइन लगे, वो मुझे मिल नहीं रही थी। मैंने कहा जा रहा हूँ भट्ट साहब, आप फ्रॉड हैं, आप चीट हैं और मैं एक ब्राह्मण हूं, मैं आपको श्राप देता हूं। और मेरा दिल था कि मेरे हाथ से कुछ चिंगारियां मिंगारियां निकलें तो। और मैंने कहा मैं जा रहा हूं। जाके जब मैं टैक्सी में बैठने लगा तो भट्ट साहब अपने 6th फ्लोर की खिड़की से चिल्लाए, उन्होंने कहा ऊपर आ जा। मैंने कहा नहीं जा रहा हूँ, ऐसा कुछ। फिर मैं ऊपर गया, फिर उन्होंने फ़ोन किया राजश्री प्रोडक्शंस वालों को और उन्होंने कहा कि अनुपम खेर ने जो मेरे सामने इस समय ये जो किया है, ये फिल्म तो मैं अब अनुपम खेर के साथ ही बनाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। एंड एज दे से रेस्ट इज हिस्ट्री। उस दिन मैं सीधा रेलवे स्टेशन चला गया होता तो आज कोई और बैठा होता मेरी जगह। तो किसी चीज का बुरा लगे तो आप सामने वाले को जरूर बता दो कि मुझे बुरा लगा है। हम दूसरों को सेव करते हैं पर हमको अपने आप को सेव करना पड़ता है। एंड देन रेस्ट इज हिस्ट्री एज दे से। मेरा आज तक लोग मुझे मिलते हैं कि जी बहुत अच्छा काम करते हैं लेकिन सारांश वाली बात नहीं है। बट दैट्स ट्रू बिकॉज व्हेन आई वाज डूइंग सारांश I had put everything into it. My humiliation, my sadness, my disappointments. It was not only acting. It was everything put together. Yes, sir. सर अनुपम सर, आपकी
जो सबसे बड़ी खूबी है जो हम लोग देखते हैं वो है आपकी वर्सेटैलिटी। आपने हर तरह के रोल कर चुके हैं। you've played lead roles, parallel roles, character roles, negative roles, comic roles, excelled in all of them. आपको कौन सी चीज सबसे ज्यादा पसंद आती है? ऐसा मैं रोल्स को ऐसा कुछ नहीं है। आई थिंक ए गुड एक्टर इज गुड इन एवरीथिंग। अब आप मुझसे पूछ रहे हो, मुझे बेसिकली तो हिंदुस्तानी खाना पसंद है, मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। फिर मुझे इटालियन भी पसंद है, लेबनीज भी पसंद है, थाई खाना भी पसंद है। पर एक्टर से बोलना कि मुझे क्या पसंद है, व्हाट इज़ मोर डिफिकल्ट इज़ टू डू कॉमेडी, बिकॉज लोगों को हंसाना बहुत मुश्किल होता है, लोगों को रुलाना बहुत आसान होता है। बिकॉज रुलाने में क्या होता है कि आपको खुद की अपनी ट्रेजेडीज आप आइडेंटिफाई करते हैं, बट फिजिकल कॉमेडी इज फिजिकल। एंड आई ऑलवेज से, बट आई वॉज लकी दैट आई चोज to be not one dimensional as an actor. So I did Saransh also, I did Karma also, I did Khosla Ka Khosla also, I did Wednesday also, I did all kinds of films. But मुझे जिस रोल में थोड़ा चैलेंज लगे मुझे वो रोल अच्छा लगता है। बट मैं हमेशा कहता हूँ कि अभी आज कहता हूँ, आज आपके सामने कहना चाहता हूँ कि अभी तो मैंने शुरुआत की है, अभी तो मेरी लाइफ का इंटरवल भी नहीं हुआ है। मैं अपने कंधे पर अनुपम खेर का बोझा लेकर नहीं घूमता हूं, इसीलिए मैं, क्योंकि बोझा है नहीं तो और ऊपर उड़ सकता हूं। मैंने सब लोगों को बताया हुआ है, शायद आज इधर इस्तेमाल नहीं हुआ वर्ड, मुझे कभी भी एटलीस्ट अगले 20 साल तक लेजेंड, थेस्पियन, वेटरन नहीं बुलाना। इसका मतलब ऑफ कोर्स अच्छे वर्ड्स हैं ये, बट बेसिकली लोग कह रहे हैं आपने बहुत काम कर लिया, अब आप रिटायर हो जाओ और आपको एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दे देंगे। मुझे कल मुझे एक बहुत बड़ी संस्था से बोला कि जी, बहुत बड़े अवार्ड्स की संस्था है कि जी हम इस साल आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देना चाहते हैं। तो दत्तू मेरा फोन देना, ये कल की बात है। तो मैंने उनसे कहा, ये मैसेज आई थिंक मैंने सोचा नहीं था ये मैं आपको सुनाने की ज़रूरत पड़ेगी, मगर इंटरेस्टिंग है। लोग कहते हैं ना लेक्चर देते समय आदमी बहुत कुछ बोलता है, पता नहीं उसमें कितना सच होता है कितना झूठ होता है, मगर ये कल की बात है। यस्टरडे, वुड लव टू नो योर थॉट्स ऑन एक्सेप्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन का नाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर योर inestimable contribution to the movies. Do let me know what you think. As far as lifetime achievement award is, I have decided not to accept it for another 20 years. I can accept an award for contribution to cinema so far. So far means now, but not at all looking at. Not at all my lifetime achievement. मुझे चाहिए ही नहीं। आप कौन होते हैं डिसाइड करने वाला कि मेरी लाइफ का पीक आ गया? मेरी लाइफ का पीक तो जब मैं डिसाइड करूंगा। That's why I've never said 3 things in my life. I never say मूड नहीं है for the last 33-34 years. I never say बोर हो गया हूं। और एक आजकल नया एक फ्रेज बना है जो आजकल की जनरेशन बहुत इस्तेमाल करती है, That is the way I am. That is the way I am, Dad. अरे idiot, if that is the way you are, that means there is no scope of growth. I at the age of 90 will also never say that is the way I am, because there is always a possibility of learning more. Clint Eastwood बड़े 90 साल के जब हो रहे थे, बहुत फेमस एक्टर हैं, डर्टी हैरी, क्लिंट ईस्टवुड, बहुत अच्छे फेमस, बड़ी फिल्म, अच्छी फिल्में डायरेक्ट की हैं, ऑस्कर वगैरह मिला है। ही हैड ए फ्रेंड, ये 1 साल पहले की बात है, he had a friend who was a country singer. So he asked Clint Eastwood, so Clint, what are you doing on your birthday? Clint Eastwood replied, I'm starting a new film. So he said, 90, you're starting a new film? Don't you feel old? He said, I don't let the old man in. मैं बूढ़े आदमी को अपने अंदर जाने ही नहीं देता। तो ये सब हम पे डिपेंड करता है।
हम क्या जीवन में चाहते हैं ये हम पर डिपेंड करता है। हम अपने रूल अपने आप बनाते हैं। दुनिया पूरी कोशिश करेगी आपको अपने हिसाब से क्लीशे बनाने, कस्टमाइज करने की। ये अंकल जी हैं, ये आंटी जी हैं, ये सर जी हैं। मैं आज मेरे को कोई अंकल जी नहीं बुलाना, नॉट बिकॉज आई हैव एनी प्रॉब्लम, आई एम 60 or 8 years old, बट व्हाई विल यू कॉल मी अंकल जी? व्हाई विल यू? हम कभी कभी तो मेरी उम्र के लोग भी मुझे अंकल जी बुलाते हैं, बिकॉज बेचारे 40 साल से मुझे देखते आ रहे हैं फिल्मों में कि अब तो अंकल जी बन जाओ। पर मैंने बेस्ट किया मार्केटिंग स्ट्रेटजी। 27 साल की उम्र में मैंने 65 साल के बूढ़े का रोल किया। लोगों को पता ही नहीं लगता था कि मैं बूढ़ा कैसे लगता हूं। तो जो मेरा कॉन्सेप्ट था कि 27 में मुझे लगता था कि 65-year-old man will look like this. So if you remember B.V. Pradhan, I thought this is how the 65-year-old man should look. I'm 68, I don't look like that man at all. So I will decide what I want in life. That's what makes it different. आपकी जो रियल लाइफ है उसके चर्चे, उसके अचीवमेंट्स वो दुनिया देखती है, सब जानते हैं। आपकी जो रियल लाइफ है, नॉर्मली पीपल, यू आर अ स्टार, येट व्हेन यू आर इन द मिडस्ट ऑफ पीपल एंड व्हेन यू टॉक टू देम, आई प्रॉमिस यू मोस्ट ऑफ अस फील यू आर जस्ट लाइक वन ऑफ अस। इसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है क्या? I think only insecure people try to feel important. Secure people don't want to feel important. They are important in any case. I think people who don't like themselves, they want to pretend to be somebody else. I like myself. I like how I dealt with my life. So I feel every person is important. यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं, at least people who are above 60, उन सबकी लाइफ पर एक बायोपिक बन सकता है। उन सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक जद्दोजहद, किस मुश्किलों से गुजर के वो पहुँचे, क्या कहाँ पहुँचे। प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी लाइफ के स्ट्रगल भूल जाते हैं और खासकर अपने बच्चों को नहीं बताते कि मैंने कैसे मेहनत करके मैं। बट सबकी लाइफ में, आपकी लाइफ, आप 60 से ऊपर नहीं है अभी, मगर नहीं तो आपकी वाइफ मुझे तीखी नजरों से देखेंगी। I see my life as a film where I was born. तो मैं अपने सुख की, अपनी खुशी की जो तुलना है वो मैं अपने लास्ट ईयर के बैंक बैलेंस से नहीं करता। मैं जब 3 जून 1981 को बॉम्बे आया था तो मेरी जेब में 37 रुपए थे, 37 रुपीज। उस हिसाब से तो मैं हमेशा करोड़पति रहूंगा। सो दैट मेक्स इट, एंड ऑल्सो if I pretend to be important, I will tire myself. I don't want to tire myself. I think मेरे को ये बॉडीगार्ड अच्छे लोग हैं, बहुत प्यारे लोग हैं, मगर मुझे बॉडीगार्ड चाहिए ही नहीं। जो आप लोग, अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ से गुजरूँ वहाँ तक तो मुझ पर टूट पड़ना, ऐसा मत करना। But I think these are all marketing gimmicks to feel important. I am important. How many people in the world who come to Mumbai to make it big in any field, not only in the field of acting. Mumbai is a very large-hearted city. It is the largest hearted city in the world. वो हर उस इंसान को जो अपने सपने लेकर आता है, उन पर हार्डवर्क करता है, उसको एक मौका देती है वो शहर। पर उसमें से भी 0.1% कामयाब होते हैं, खासकर हमारे प्रोफेशन में। मैं उन 0.1% में से पिछले 40 साल से काम करता आ रहा हूँ। कितनी मोहब्बत मिल रही है। Why should I give attitude to these people who have made me who I am today? And it's tiring. I don't want to. So simplicity is the most beautiful thing in the world, because that's what my father would have taught me. My father was a simple man. He used to say, उनका एक शब्द मुझे भूलता नहीं, he was an ordinary man, there was nothing extraordinary about him, but he was an extraordinary father, extraordinary person. He said, the easiest thing in the world is to make somebody happy. I just try and do that, and that can only happen when you don't carry the baggage of who you are. ऐसा मुझे लगता है। सर 27 की एज में आपने एक 65-year-old
बुजुर्ग का रोल प्ले किया। अब ये 68 की यंग एज में क्या 27 साल का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं कभी? मैं 27 साल से ऊपर गया ही नहीं हूं, ना मेंटली ना फिजिकली। मैं गिनता ही नहीं हूं। दिस इज जस्ट, पीपल से ना दिस इज जस्ट ए नंबर, बट इट्स रियली ए नंबर। जितने भी लोग यहाँ 60 के ऊपर बैठे हैं, क्या आपका मन 27-30 साल के ऊपर का कभी हुआ है? मन तो उतना ही होता है, तन जो है वो तो एक प्रोसेस है लाइफ का, बट तन भी ठीक हो सकता है अगर आप रोज एक्सरसाइज करो, रोज अच्छी बातें सोचो, तो मन जो है वो तभी 30 साल का ही रहता है। मेरा तो 27 का है, क्योंकि जितना ज्यादा आप उम्र में आगे बढ़ते हैं उतना ज्यादा ब्राइट होते जाते हैं। इसीलिए आई ऑलवेज फील दैट आई लर्न सो मच फ्रॉम माई मदर। माई मदर इज वेरी पॉपुलर ऑन माई सोशल मीडिया, बट दुलारी रॉक्स, दुलारी उठकना, तो कितना कुछ मुझे सीखने को मिलता है। अनफॉर्चुनेटली वी मेक ओल्डर पीपल अ पार्ट ऑफ फर्नीचर इन आवर हाउसेज एंड वी डोंट यूज द एक्सपीरियंस दैट वी गेट फ्रॉम द ओल्डर पीपल। देयर इज सो मच टू लर्न फ्रॉम देम। सो इसलिए उम्र तो क्या है मेरा जो, और मैं दूसरा है, मैं सब कुछ सीख के रखता हूँ। सोशल मीडिया कैसे चलाना है, मोबाइल को कैसे चलाना है, वो सवाल तुम्हारे। तो जितने मेरी राय है कि आप सीखिए, सब कुछ सीख सकते हैं, अपने आप को हालात पर मत छोड़ दीजिए, ऐसा मुझे लगता है। अब हम आखिरी क्वेश्चन आपसे करेंगे, देन वी विल हैव 15 मिनट्स ऑफ क्वेश्चन आंसर फॉर ट्रैवल बैक। एक आखिरी सवाल आपसे कि आजकल तीखी नज़रों की बात आपने की, तो कि घर में अब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ रहते हैं आप, जी जी, तो कभी पार्लियामेंट में कोई एक आपका लिखा हुआ क्वेश्चन कभी पूछा गया है? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। शी इज़ ए वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन, और मेरे घर में वो बिफोर बिकम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शी वाज द हाउस ऑफ द मेन पार्लियामेंट। शी इज़ ए मच मोर टैलेंटेड लेडी देन आई एम, मच मोर इंटेलिजेंट देन आई एम, एंड आई एक्सेप्ट इट, एंड आई डोंट एक्सेप्ट इट एज ए क्लीशे हस्बैंड वाइफ डायलॉग्स। आई डोंट, बिकॉज आई डोंट थिंक, यू हैव टू बिलीव वी वर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। तो हमारे रिश्ते, देखिए रिश्तों में हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, मगर दो चीज़ें हमेशा बना के रखनी चाहिए। वन इज़ यू शुड रिमेन द फ्रेंड टू योर पार्टनर, एंड यू शुड ऑलवेज हैव म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर। दैट इज़ व्हाट इट इज़। मैं कुछ नहीं उनको बोलता हूँ ना, ही हमारे घर में बड़ा नॉर्मल वातावरण है, बहुत ही नॉर्मल वातावरण है। Do we have sergeants with mics around? Yeah. सर, एक्टिंग के अलावा एक लास्ट क्वेश्चन कि ये आपने जो किताबें लिखी है आपकी, उसमें वन पर्टिकुलर बुक इज वेरी इंट्रीगिंग, which is your best days today. अब now, where does that come from? Where does that thought process? So my best days today I wrote during COVID. मैं न्यूयॉर्क में काम कर रहा था, I was working in New York for 3 years, and then COVID started and Kiran was diagnosed with cancer, so I had to come back to be with her. Now she is fine by the grace of God. तो जब मैं यहाँ आया, मैंने मुंबई पहली बार, इतने सालों से मैं रह रहा था, सड़कें मुंबई की सुनसान देखी। तो I said, तो मैं थोड़ा डर गया, because I'm sure everybody was scared during the period of COVID and lockdown and everything. So उस डर को निकालने के लिए मैंने लिखना शुरू किया। That's what when I have some thoughts. फिर जब वो किताब मैंने लिख ली about my experiences of COVID and what happened, etc., we were looking for the title of the book. तो मैंने सोचा मैं क्या नाम रखूं। मेरे पब्लिशर ने बताया ये नाम रख दो, My Time in the COVID is the distinct great teacher. तो मुझे याद आया जब मैं और मेरा छोटा भाई छोटे थे, 5th या 3rd ग्रेड में पढ़ते थे, तो हमारी माँ हमको हमारे स्कूल छोड़ने जाती थी हाथ पकड़ के, और चूंकि हम गरीब थे और छोटे से स्कूल में जाते थे, तो वो स्कूल के बाहर गेट के पास जब छोड़ती थी तो कश्मीरी में कहती थी चोन अजुक दोचू सारनी को जान, जिसका ट्रांसलेशन था बेटा योर बेस्ट डेज टुडे। तो हमको लगता था कि माँ ने बोल दिया है आज हमारा बेस्ट डे है, तो फिर हमको स्कूल में चाहे मार पड़ती थी, चाहे हम बुरा करते थे, बट हमारे मन में था कि हमारा बेस्ट डे तो आज है, तो हमारे सारे डे अच्छे गए। तो मुझे लगा कि इससे बेटर कोई टाइटल नहीं हो सकता। दैट्स व्हाई द बुक इज कॉल्ड योर बेस्ट डेज टुडे। और मुझे लगता भी है, मुझे लगता है कि एवरी डे इज ए ग्रेट डे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपको कोई कहे
कि ये लो आज रात को 10 करोड़ रुपया ले लो लेकिन सुबह नहीं उठोगे, आप क्या करोगे? सर कोई जवाब के लिए स्कोप ही नहीं छोड़ा आपने मुझे मुझे मैं तो सुबह उठना चाहूंगा। तो दैट मीन्स एवरी डे आप सुबह उठते हो, इट इज वर्थ 10 करोड़ ऑफ रुपीज। सर आप देखिए एक बार हम लोग सोचते हैं, As simple as that. Every day you get up, you say, wow, 10 crores of rupees I earned, my friend. God, thank you, I woke up. I get up with that thought in the morning. अब आप डिसाइड कर लीजिए आपकी औकात के हिसाब से कितना रुपया आप अपने आप को देना चाहते हो। अगर आप कहने चाहते हो कि 10 रुपया मैं रात को दूंगा तो फिर उठो ही मत सुबह, कम से कम 10 करोड़ से तो शुरुआत करो। So we are all rich people because we wake up in the morning. That's what I feel. हो गया जी? Absolutely. आप बताइए आपका रिश्तेदार कौन है जो सवाल पूछे? सर ये जितना है ये पूरा एक परिवार है, जो भी पूछेगा वो एक ही परिवार से। So the last question should be from the person sitting in the last row. वो एक काली जैकेट में है, भाई साहब हाथ कटा ऊपर करके जो सवाल पूछने वाले हैं आगे आ जाए। Let's. सर मेरा नाम विनीत जोशी है, जलगांव से हूँ। एक सवाल पूछना चाहता हूँ, जो मूवी में से नरेटिव सेट करते हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मूवी में जो एक नैरेटिव सेट करते हैं उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? थोड़ा कैन यू एलैबोरेट योर क्वेश्चन? समाज के ऊपर उसका कितना असर गिर सकता है? किसका? मूवी में नरेटिव जो पास करते हैं, हाँ, उसका समाज के ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव कैसा? मेरा ऐसा मानना है कि जैसे जब आप टूथपेस्ट बनाते हो या जूते बनाते हो, इंडस्ट्री है ना, आप इस बनाते समय ये नहीं सोचते हो कि इसका समाज पे कितना असर पड़ेगा। आप फिल्मों के बारे में ऐसा क्यों सोचते हो कि इसका समाज पे क्या? फिल्म इज अ बिजनेस, यू पे फॉर इट एंड यू गो देयर, बट आप पर डिपेंड करता है आप इसमें क्या अच्छा सीख के गए हो। हमारे देश में 2 सीरियल चलते थे, रामायण और महाभारत। लोग नहा के पूजा करके टीवी को हाथ चढ़ा के देखते थे, क्योंकि सच के बारे में था, अच्छाई के बारे में। कितनी अच्छाई हो गई उसके बाद। सो डिपेंड करता है इंडिविजुअल पर वो क्या सीखते हैं। यस सर, और एक कश्मीर फाइल के बारे में आपका नहीं, आपका एक सवाल हो गया। नाउ दैट स्मॉल लिटिल गर्ल। राजेश, बिफोर एनीबॉडी। हाँ जी, आप आइए, बोलिए। आप। सर मैं डॉक्टर राजेश पाटिल, मैं भी जलगांव से हूँ। जी जी। मेरा सवाल ये है कि आप क्या सोचते हैं कि फिल्में समाज की समस्याएं और समाज को रिप्रेजेंट करती है, या फिल्म देख के समाज में कुछ बदलाव या देखिए आता है? फिल्म जो है वो समाज का आईना होती है मेरे हिसाब से। एक तो कहानी होती है, बिकॉज फिल्म इन द इंडस्ट्री दे वांट टू बी सॉर्ट ऑफ, दे वांट टू अर्न मनी, बट आप डिसाइड करते होंगे कि आप अपने परिवार को कौन सी फिल्म दिखाना चाहते हो, कौन सी नहीं दिखाना चाहते हो, अपने बच्चों को खासकर। तो एक मिनट शांत हो जाओ सब लोग, दोस्तों शांत हो जाओ, रिलैक्स, मजे करो। संडे है, इसके बाद थोड़ा आप इसके बाद अकेले हो मेरे जाने के बाद। सो इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट यू थिंक ऑफ इट। देयर आर सम पिक्चर, जैसे सत्यकाम एक फिल्म थी, जैसे मुझे लगता है सारांश में बहुत सीख थी, खोसला का घोंसला में अलग किस्म की सीख थी, प्लॉट कैसे लेना चाहिए, है ना। वेडनेसडे में अलग सीख थी, बहुत सारी फिल्मों में अलग अलग सीख होती है, डिपेंड करता है कि आप क्या सीखना चाहते हो। यस नेक्स्ट। अनुपम जी, एक यंग लीडर है, हर्षल आयर, आपसे कुछ पूछना चाहता है। हाँ जी। Sir, around 7 years back, I wrote and self-published a book, and then it has been a journey for past 7 years. I studied world cinema as well, and 3 years ago I was diagnosed with bipolar disorder. Then I was treated with 12 ECTs. I lost my all visual memory and all the study of films and all everything. But I have been continuing forward, and recently a thought is lingering over in my mind, is that is this creativity is a sickness, or that can be a point of looking So, at creativity? हिंदी में पूछो ना, मेरे को अंग्रेजी समझ नहीं आई।
बेटा हिंदी पूछ के बताओ, सिंपली पूछ के बताओ, थोड़ा हेल्प मी। आई वांट टू आंसर प्रॉपर्ली बट आई मस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। आप आगे से हटिए जरा। आगे आ जाओ बेटा, आगे आ जाओ। हाँ जी, I have क्या डिसऑर्डर हुआ आपको? bipolar disorder. बाइपोलर, Yeah. ओके। But I have studied all the masters in art. हिंदी में बोल बेटा। ठीक है, अब मैं समझ में आया, सुनाई दे रहा Masters in art, and looking at their life, I find correlation. I kind of make a pattern that creativity at most is a sickness. If you are being a creative person, So I think first of all it's very courageous of you to in front of so many people admit that you have this problem. So that itself is a hope. I went through a mental depression. I went through a psychiatrist. And the more I told to people, it helped a lot of people. So the fact that you are saying this in front of everybody, that means obviously there is optimism, there is hope. Now, what you need from the doctor, that is, apart from that, you have to have positive thoughts. You have, as I said to you, life is beautiful. You at least have the luxury of asking a question, and there are so many people who are must be bipolar in this audience. अपने अपने तरीके से होते हैं। हम सब दोनों शाखाएं हैं हमारे जीवन में। हमारे अंदर कुछ की उभरती है, कुछ की नहीं उभरती है। तो आप अच्छी अच्छी चीज़ें करो, अच्छी अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ो, go to the doctor, whatever the doctor says, do that, follow that, and positive thoughts always help. मैं जैसे जब मुझे मेरा मेंटल डिप्रेशन का पता लगा, मैंने तीसरी बार भगवत गीता पढ़ी। उसमें कुछ ऐसा नहीं कि रिलीजियस वजह से, भगवत गीता में हर सवाल का जवाब है। I have है ना? read to, yes. दोबारा पढ़ना शुरू करो बेटा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, यू आर द बेस्ट। There's a small kid there, sir. हाँ जी बेटा बोलो, क्या नाम है आपका बेटा? ईशानवी प्रशांत सिंह। ओके, क्या बोला? आहिस्ता आहिस्ता बोलो। सर आपकी इस एज में इतनी अच्छी याददाश्त है, फिर उस एज में क्यों नहीं थी, और अगर थी तो आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स क्यों नहीं मिलते थे? बेटा पढ़ाई का याददाश्त से कुछ लेना देना नहीं होता, पढ़ाई का इंटरेस्ट से लेना देना होता है। मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था। मैं लास्ट के 5 दिन पढ़ता था, वो गेस्ट वर्क आते थे ना, वो पढ़ता था मैं। तो याददाश्त तो मेरे को बचपन में मैंने क्या खाया था 5th स्टैंडर्ड में, उसका याददाश्त कुछ, मैं पढ़ने में इंटरेस्टेड ही नहीं था। बट व्हेन आई गॉट इंटरेस्टेड इन एक्टिंग, और फिर मैं एक्टिंग स्कूल में गया, तो मैं वहां से गोल्ड मेडल लेकर निकला, बिकॉज मेरा इंटरेस्ट था एक्टिंग में। याददाश्त पे मेरे शक मत करो। यस सर, मैं डॉक्टर अशोक वासलवार। आपने बताया कि बचपन में आपको आपके फादर के तरफ से, आपके ग्रैंडफादर के तरफ से काफ़ी शिक्षाएं मिली, जिंदगी में कैसा बर्ताव करना, काफ़ी अच्छे इमोशंस आपके साथ में पैदा हुए। लेकिन आज के ज़माने में ऐसा नहीं दिखता है। हम लोग यहाँ सब रोटेरियंस है, लेकिन मैक्सिमम टाइम हमारा बच्चों के साथ में जाता नहीं है, अपने अपने प्रोफेशन में मोबाइल पे जाता है। इस बारे में आप क्या हमको मार्गदर्शन कर सकते हैं? तो पहली बात तो आप एडमिट कर रहे हो कसूर हमारा है ना? तो ये एडमिट अगर कर लिया तो इसका आपको रास्ता, देखिए कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ेगा। सारे एम्बिशियस हैं आजकल। देखिए हमारे पेरेंट्स की शादी क्यों चलती थी? क्योंकि वाइफ यूज्ड टू एक्सेप्ट हर रोल। मेरे माता पिता 59 ईयर्स तक मैरिड थे, टिल माई फादर पास्ट अवे, 59 ईयर तक, एंड इट वॉज राइट। बट टुडे I think women have the right to be independent. Women have the right to be themselves. So it's not, let's not expect them to sort of say कि नहीं मैं घर का भी काम, फिर भी बेचारी करती हैं, ऑफिस भी जाती हैं, बच्चों को भी संभालती है, पति को भी संभालती है। तो because I personally believe then women are much more stronger than men, and I mean it. I don't say it just to be popular with you people. I don't say it because of that. Because जो इंसान एक जीवन को जन्म दे, उससे सुपीरियर कोई हो ही नहीं सकता है। सिंपल सी बात है। बट अपने आप को देखिए, आप घर में ही आप, मैंने को जो भी बातें मैंने आपको बताई या जो भी मैंने सीखा है अपने माँ बाप से, ऐसा नहीं था कि वो मुझे बोलते थे अब मैं देख बड़े ज्ञान की बात कर रहा हूँ। बट मैं याद रखता था, ये तो तरीका ढूंढना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, जैसे मेरी दादी जो थी वो अंगीठी में खाना बनाती थी, फिर मेरी मदर
प्रेशर कुकर में खाना बनाने लगी। मेरी बीवी तो खैर खाना बना नहीं सकती है, वो अंडा भी नहीं उबाल सकती है। मेरा एक सपना है कि एक दिन मेरी बीवी चाय का प्याला लेकर आए, देखो मैंने अपने हाथ से तुम्हारे लिए चाय बनाई है। बट यू विल लर्न, यू हैव, एवरीबडी हैज टू मेक देयर ओन रूल्स। लास्ट क्वेश्चन सर। सर लास्ट क्वेश्चन मोनिका जी भट्ट। सर मैं प्रफुल्ल बरडिया। सेकंड लास्ट, लेट दिस लेडी आस्क। सेकंड लास्ट। नमस्कार सर, नमस्कार। बस एक्चुअली यहां कशर पे तुम पृछन, बस नर्वस तुम क्वेश्चन पृछनस मज तो बट बस यहां तुम थैंक यू कर तुम कर कश्मीर फाइल्स मूवी पूरे वर्ल्डस मज वातनो तुम तम खतर बस सठा शुक्रगुजार तुंद विवेक सर सुन। मोन क्वेश्चन तुंद एक्सपीरियंस क्युथ रोद अत पिक्चर मज काम कर, बिकॉज तुम पन्नी फादर सुन नाव तथ पिक्चर मज बे टू सम एक्सटेंट तुम रिलेट करान अस तुंद एक्सपीरियंस क्युथ रोद। सो व्हाट नाम क्या चुता हूँ? मोनिका भट्ट। मोनिका जी ने कश्मीरी में मुझसे सवाल किए, मुझे बड़ खुश तो मिलित तो एक कशर पे मिसित का। थैंक यू। इट वाज वंडरफुल टू बी एबल टू स्पीक टू हर इन कश्मीरी। Kashmiri language is dying according to me. All the languages are dying because we are constantly, we want to be very impressed when our children speak in English. बेटा इंग्लिश में पोएम सुनाओ। आज मैं एक बच्ची को मिला जिस होटल में ठहरा हूँ, उनके ओनर की बच्ची को, तो मैंने कहा कोई गाना सुनाओ, तो उसने गाना टेलर स्विफ्ट का सुनाया, विच इज़ नॉट बैड, शी सैंग वेरी वेल, बोथ द सिस्टर्स। बट उसको मैंने कहा कि इफ़ यू वांट टू बी ओरिजिनल, लर्न ए सॉन्ग इन हिंदी, ए क्लासिकल सॉन्ग। सो थैंक यू फॉर स्पीकिंग टू मी इन कश्मीरी। कश्मीर फाइल्स, जैसा कि आपको पता है, 32 साल तक इस सच्चाई को छुपा के रखा गया कि 19 जनवरी 1990 को, आज से अभी मेरे ख्याल से 12 दिन बाद, एक रात को 5 lakhs people were thrown out of their homes, और इस बात को 32 साल तक लोग छुपाते रहे। पॉलिटिशियंस, जर्नलिस्ट, एवरीबडी। हम हर 19 जनवरी को बोलते थे कि ये भारत कश्मीरी हिंदुओं के साथ अन्याय हुआ है, कोई पॉलिटिकल विल नहीं थी। थैंक गॉड दैट आर्टिकल 370 जो आया उसको हटाया गया और फिर हमारे करेज हुए। थैंक गॉड, बिकॉज हमें पता है, और जो कश्मीर फाइल में दिखाया गया वो 10% है जो असली में हुआ, 10%। बट एटलीस्ट सच सामने आया है, आप तक पहुंचा, मुझे इस बात का अच्छा लगा। हाँ जी। मैं प्रफुल्ल बरडिया सर। आपका जो कश्मीर फाइल्स के बारे में आपने बताया, एक किस्सा जो आपने जिस तरह की एक्टिंग आपकी थी, ऐसा लगा था आप खुद उसमें से गए हो, तो कुछ आप शेयर अगर करें, क्योंकि कश्मीर फाइल आपने यहाँ पे सबने देखी है। देखिए, तो जब मुझे वो शेयर करें तो अच्छा। जब मुझे वो रोल मिला तो मुझे लगा कि आई एम रिप्रेजेंटिंग द होल कश्मीरी कम्युनिटी इन दैट कैरेक्टर। तो आई वॉज रिप्रेजेंटिंग कश्मीरी कम्युनिटी एज ए सिंगल मैन। एक तो फिर मैंने बेस्ट कहा कि द ओनली वे आई कैन मेक द कैरेक्टर वर्क इज इफ आई गिव द नेम ऑफ माई फादर टू द कैरेक्टर। तो मेरे कैरेक्टर का मैंने नाम अपने पिताजी का नाम रख दिया, पुष्कर नाथ जी। तो जैसे ही वो नाम रखा, मेरे ऊपर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई मेरी। और मैं सोचता था हमेशा, ये क्यों बोलते हैं सोलफुल परफॉर्मेंस, सोलफुल परफॉर्मेंस। बट कश्मीर फाइल को करने के बाद मुझे लगा कि that role I did with my soul, not with my craft. That is what is important. दोस्तों, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों के साथ बात करके। अब मैं एक चीज करने वाला हूं। बैठे रहे, जाना नहीं, जाने का नहीं। दत्तू, ये लो बेटा, बनाओ इसका। अब मैं जब भी कहीं अपना एक इस तरह का इवेंट करता हूं, मैं फिर उस दिन रात को या नेक्स्ट डे उसका वीडियो डालता हूं कि मेरे लेक्चर का क्या असर हुआ। तो आप लोगों को अभी ये सोचना है, ये एक्टिंग करनी है कि आप लोग मेरे लेक्चर सुन के पागल हो गए, ठीक है? जो कि अंदर से तो आपको अच्छा ही लगा होगा, मुझे उम्मीद है। तो अब मैं ये वीडियो बनाऊंगा, मुझे तंग मत करना, मैं आपके बीच में आऊंगा और मैंने लेक्चर खत्म किया, चलिए।